Now, students of 12th standard, let us see the next topic of this chapter 6, mutual inductance. Before this, we have studied about the self-inductance. What was self-inductance? A single coil connected with battery, key and diode. When current is passing through the coil along the direction of axis of the coil, magnetic field is generated, due to which magnetic flux links with the coil itself. And now if the current passing through the coil is allowed to change by means of rheostat, then the magnetic flux linked with that coil also changes. So according to Faraday's law, an induced EMF is generated in the coil itself, and that was known as self-induced EMF. It means in the topic of a self-inductance there was a single coil and current is passing through the given coil. But now in mutual inductance, as you know about the mutual friend, what will you say about the mutual friend? आपका friend और उसका भी friend, वो फिर आपका friend बन जाए. That is mutual friend. Same way यहाँ पर है. So instead of one coil, there are the two coils. One coil 1, this is coil 2. Coil 1 having number of turns N1, coil 2 having number of turns N2. And the essential condition is that there should be a common central axis of both the coil. ये कॉइल ऊपर या नीचे नहीं चले, एग्जैक्टली इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस दोनों कोइंसाइड होनी चाहिए, इस तरह से रखने की. And now if you pass the electric current through the first coil, so magnetic field is generated along the axis of the first coil, और ये magnetic field की कुछ magnetic field lines are also be linked with the second coil. That's why a certain magnetic flux is also be linked with the second coil. We don't have to discuss the magnetic flux linked with first coil. Due to electric current passing through the first coil, which will be the magnetic field is produced. Due to that magnetic field, how much will the magnetic flux links with the other coil go to find. And that magnetic flux link with the other coil, if you change, किस तरह से change करेंगे? By changing the value of electric current passing through the first coil. Then due to change of magnetic flux in second coil, induced EMF will be generated between two ends of the second coil. And this phenomena is known as mutual induction. Let us see. If two conducting coils are placed very close to each other and steady current is passed through one coil, then magnetic flux links with the other coil. किसकी वजह से? पहली कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरी कॉइल की क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होगा. दैट्स व्हाई द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स विद द अदर कॉइल. नाउ इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट कैरिंग कॉइल, यानी कि इसमें से पहली वाली कॉइल में से चेंज, उसको आप चेंज करते हैं, देन द ईएमएफ विल प्रोड्यूस इन द अदर कॉइल बिटवीन टू एंड्स ऑफ द अदर कॉइल. इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी जनरेटेड अकॉर्डिंग टू फैराडे's law. दिस phenomenon is known as what? Mutual induction. Now we come to the point of mutual inductance. On the basis of this fact, figure shows two coils near each other sharing common central axis. This is essential condition. N1 and N2 are the number of turns in the coil 1 and coil 2. When steady current I1 is passed through the coil 1, then along the direction of axis produces a magnetic field, and some of these magnetic field lines links with the coil 2. That's why the magnetic flux linked with the coil 2. Coil 2 के number of turns N2 है, and phi 2 is the magnetic flux linked with each turn. So total magnetic flux linked with second coil is known as flux linkage. And from experiment it is found that this flux linkage N2 phi 2 linked with the second coil is directly proportional to the current passing through the first coil, यानी I1. Therefore, N2 phi 2 is proportional to I1. You put the proportionality constant. ये 2 and 1 है, इसीलिए यहाँ पे mutual inductance का symbol 1. लेकिन ये 2 and 1 इस तरह से ही मेंटेन रखने का, लेफ्ट साइड का 2, राइट साइड का 1. तो N2 phi 2 is equal to M21 into I1. So what will be M21?
तो M21 will be equal to N252 upon I1 and this proportionality constant is known as mutual inductance. किसका? M21 इसीलिए mutual inductance of second coil with respect to first coil, or it can be said as the mutual inductance of the system of two coils. Now if the current I1, अब ये current I1 चेंज होता है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट कितना, तो दैट यू कैन डिटरमाइन बाय यूजिंग फैराडेज लॉ. If current I1 is changed, then there will be a change in magnetic flux linked with the coil 2. I1 करंट को चेंज करो तो इसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ है वो भी चेंज होगा. So EMF generated between two ends of the coil is denoted by E2. EMF E2 will be induced in this coil 2 is given by, according to Faraday's law, E2 equal to minus d by dt of flux. कितना फ्लक्स है? N252. बट M252 की वैल्यू कितनी? M21 I1, जिसमें M21 कांस्टेंट, तो क्या आएगा? M21 बाहर आएगा d by dt of M21 I1. तो इट इज E2 equal to minus M21 into di1 by dt. Now in this equation 1, if you take current I1 equal to 1 ampere, then N252 equal to M21, तो इसके पर से हमको डेफिनेशन मिलेगी म्यूचुअल इंडक्टेंस की. ये सेकंड इक्वेशन में di1 by dt इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकंड लो, तो आपको E2 इक्वल टू माइनस M21 मिलेगा. मतलब दोनों इक्वेशन में, एक में I1 इक्वल टू 1 एम्पियर लो तो N252 इक्वल टू M21 इज म्यूचुअल इंडक्टेंस. इसमें di1 by dt इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकंड लो तो आपको E2 इक्वल टू माइनस M21 इज म्यूचुअल इंडक्टेंस. दोनों की डेफिनेशन. तो इन द फर्स्ट इक्वेशन इफ I1 इक्वल टू 1 एम्पियर then we get N252 equal to M21. So what will be the definition? Let me see now. So definition of mutual inductance is like this one. तो क्या था आगे वाले इक्वेशन 1 में? I1 equal to 1 ampere, so N252 equal to M21. मतलब क्या? The magnetic flux linked with वन ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स. जब दो कॉइल पास पास में हैं तो एक में से करंट पास कराते हैं और दूसरे में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है वो फाइंड करने का. लेकिन एक में से जो करंट पास कराया कितना होना चाहिए? 1 एम्पियर का. एंड तब दूसरे के साथ जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ वो खुद म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा. द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ वन ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर कॉइल is called mutual inductance of the system of two coils. अब अगर आप सेकंड इक्वेशन लेते, सेकंड इक्वेशन क्या था? E2 इक्वल टू माइनस M21 इंटू di1 by dt. तो di1 by dt को क्या कहेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. वो रियोस्टेट से आपको एक सेकंड में 1 एम्पियर का करंट चेंज कराना है, या बढ़ाना है या कम करना है. एंड एट द सेम टाइम वही कॉइल 2 के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर ज्वाइन करना है, और वो वोल्ट मीटर जितना वोल्टेज बताता है during that change of current by 1 ampere in 1 second, that is called what? Induced EMF. So the definition, if di1 by dt equal to 1 ampere per second, 1 ampere per second मतलब 1 unit in equation 2, then E2 equal to minus M21. तो क्या आएगा डेफिनेशन? ये induced EMF ही म्यूचुअल इंडक्टेंस है, लेकिन कब? di1 by dt equal to 1, यानी कि वो डिनोमिनेटर में आता है. तो इसलिए क्या कहेंगे? पर डिनोमिनेटर में आता है. तो the induced EMF generated in any one of the system of two coils, दो कॉइल में से किसी भी एक कॉइल में EMF जनरेट होता है. एनी वन ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स. क्या करने से? पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द अदर कॉइल. दूसरी कॉइल में 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड में चेंज कराने से जो भी इंड्यूस्ड EMF जनरेट होता है एक कॉइल में, दूसरी कॉइल में 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड में चेंज कराने से इज कॉल्ड व्हाट? म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो डेफिनेशन है the induced EMF generated in any one of the system of two coils per unit rate of change of current in other coil is called mutual inductance of the system of two coils. What will be the unit of mutual inductance? It is also be Henry, just like as self-inductance. So Henry equal to volt second per ampere या Weber per ampere. Now this mutual inductance of the system of two coils depends on what? It depends on 6 factors. आगे के 3 सेल्फ इंडक्टेंस में देखिए वो तो आएंगे. तो इट डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप ऑफ द कॉइल, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स N1 and N2. नंबर 3 डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम ऑन विच द कॉइल आर बाउंडेड.
नंबर 4, इट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव डिस्टेंस, दो कॉइल नजदीक में कितनी है या दूर कितनी है। जितनी नजदीक में होगी इतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरे कॉइल में से पास होगी। तो रिलेटिव तो डिस्टेंस बिटवीन देम एंड देन रिलेटिव ओरिएंटेशन, एक कॉइल इस तरह से है और दूसरी कॉइल भी इस तरह से, तो दोनों की एक्सिस को एक्सियल है। लेकिन एक कॉइल इस तरह से और दूसरी कॉइल अगर आप इस तरह से कर दे, देखिए ध्यान से, एक कॉइल इस तरह से बराबर, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस तरह से, और दूसरी कॉइल किस तरह से रखनी है आपको, इस तरह से नहीं रखनी, इसको दूसरी कॉइल को आप इस तरह से वर्टिकली रख देते ऐसे, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर हो गया। अगर दोनों कॉइल क्रॉस्ड है तो इसको क्या कहेंगे, रिलेटिव ओरिएंटेशन, मतलब एक कॉइल का वेक्टर एरिया दूसरी कॉइल के वेक्टर एरिया के साथ कितना एंगल बनाता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव ओरिएंटेशन। तो इट डिपेंड्स ऑन देयर साइज एंड शेप, नंबर ऑफ टर्न्स, distance between two coils, their relative orientation and magnetic property of the medium on which they are wounded. Now we will try to understand this topic of mutual inductance by taking one example. कौन सा example? तो example में देखिए, now we are considering these are the two long solenoids, दो long solenoid, एक solenoid जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन कम है, रेडियस कम है, दूसरा solenoid जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, मतलब रेडियस ज्यादा है, दोनों एक दूसरे के अंदर फिट है, मतलब क्या, दोनों की एक्सिस सेम है, दोनों की एक्सिस एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होती है, ये सिचुएशन जरूरी है, दिस इज एसेंशियल कंडीशन। तो नाउ ये कंसीडर द टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स, टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, ईच ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ सेम है, लेट N1 एंड N2, तो ये पहली कॉइल बड़ी वाली जिसके नंबर ऑफ टर्न्स इज N2, अंदर की कॉइल इसके नंबर ऑफ टर्न्स इज N1, इसकी रेडियस इज इक्वल टू R1, तो अंदर का सोलेनॉइड इसकी रेडियस R1, बाहर का सोलेनॉइड इसकी रेडियस R2, तो लेट N1 एंड N2 एंड R1 एंड R2 बी द नंबर ऑफ टर्न्स एंड रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अंदर का सोलेनॉइड है उसको S1 कहेंगे, बाहर का सोलेनॉइड है उसको S2 कहेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स एंड रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इनर solenoids and outer solenoids S1 and S2 respectively. Your length L should be too much greater than R1 and R2, तभी ये दोनों solenoid को long solenoid कहेंगे। ये length कैसी होनी चाहिए, ये रेडियस R1 एंड ये रेडियस R2 की कंपैरिजन में कब सबसे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। Now we want to determine for such system of two solenoids the mutual inductance. तो क्या करने का आपको, दो में से कोई भी एक सोलेनॉइड लीजिए, इसमें से करंट पास कराइए, वो करंट पास करने की वजह से अलोंग इट्स एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरे सोलेनॉइड के साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है वो फाइंड करने का, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय पहली वाली कॉइल में से जो करंट पास करा है वो, तो क्या देगा आपको, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो लेट अस सी, वी डू दिस फॉर टू कॉइल्स वन बाय वन। तो फर्स्ट आई कंसीडर the current I2 passing through this larger solenoid. So when current I2 is flowing through the outer solenoid, or you can say larger solenoid S2, then the magnetic field produced along its axis. देखिए ध्यान से, ये करंट इस तरह से ऐसे से फ्लो हो रहा है और इसकी वजह से along this direction, एक्सिस के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। सोलेनॉइड का नंबर S2 है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कहेंगे, B2, according to equation along its axis is mu 0 small n2 I2. What is small n2? What is small n1? So small n1 equal to n1 upon capital N. Small n2 is equal to capital N2 upon N. And they are what? The number of turns per unit length of solenoid S1 and S2. So B2 equal to mu 0 small n2 I2. But small n2 can be replaced by capital N2 upon N. So mu 0 n2 I2 upon N. अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस तरह से जा रही है और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअली पूरे इस तरह से जा रही है, तो अब इसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये छोटे वाले सोलेनॉइड यानी कि S1 में से फ्लो होती है वही कंसीडर करनी है। तो फ्लक्स लिंक्ड विथ इनर सोलेनॉइड S1, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो आपको यहाँ फ्लक्स लिंक्ड विथ इनर सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, N1, एंड ∅1 इज व्हाट, लिंक्ड फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न। तो N1 ∅1 इक्वल टू N1 इनटू दिस B2, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड थी, जो आउटर सोलेनॉइड में इलेक्ट्रिक करंट I2 फ्लो हो रहा था इसकी वजह से, इनटू स्मॉल ए क्या हुआ, तो स्मॉल
सोलेनॉइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल क्या, पाई इंटू r1 स्क्वायर। तो दिस n151 इक्वल टू n1 इंटू b2 की वैल्यू म्यू जीरो n2i2 अपॉन स्मॉल n इंटू पाई r1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, म्यू जीरो n1 n2 साथ में लिया इंटू करंट i2 इंटू पाई r1 स्क्वायर अपॉन l। अब यहाँ पे n1 अपॉन l और n2 अपॉन l भी ले लीजिए, तो ये स्मॉल n1 स्मॉल n2 हो जाएगा, लेकिन नीचे l नहीं, इसलिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय l डिवाइड बाय l। तो यू विल गेट द आंसर इज n151 अपॉन i2 इक्वल टू दस म्यू जीरो कैपिटल n1 n2 पाई r1 स्क्वायर अपॉन l, क्योंकि i2 आप नीचे ला दीजिए, तो n151 अपॉन i2 इक्वल म्यू जीरो n1 n2 पाई r1 स्क्वायर अपॉन l। अब यहाँ पे इसको l से मल्टीप्लाई करो, l से डिवाइड करो, तो l से ये जो डिवाइड किया वो n1 अपॉन n स्मॉल n1 हो जाएगा, n2 अपॉन स्मॉल n वो भी स्मॉल n2 हो जाएगा, तो म्यू जीरो n1 n2 पाई r1 स्क्वायर इनटू l। बट दिस n151 यानी कि फ्लक्स लिंक्ड हुआ स्मॉलर सोलेनॉइड के साथ और करंट पास हो रहा था लार्जर सोलेनॉइड में से, तो फ्लक्स लिंक्ड विद स्मॉलर सोलेनॉइड अपॉन करंट पासिंग थ्रू लार्जर सोलेनॉइड इज m12। तो यहाँ पे 1/2 है, n151 अपॉन i2, इसीलिए इसका सिंबल आएगा m12। तो m12 is known as what, mutual inductance, and this mutual inductance is given by the equation mu 0 n1 n2 pi r1 square into l। अब यहाँ पे आप इसकी जगह करंट i2 लार्जर सोलेनॉइड से पास हुआ, इसकी जगह स्मॉलर सोलेनॉइड से पास करेंगे, तो आपको ऐसा ही इक्वेशन फिर से मिलेगा। एक्चुअली इसी में आपको चेंज करना है, किस तरह का देख लीजिए। तो नाउ व्हेन करंट I1 is flowing through the inner solenoid S1, अब इसमें से करंट पास कराते, तो along the direction of axis the magnetic field produced B1 equal to mu 0 small n1 into I1, but small n1 can be replaced by capital N1 upon small n into I1। तो अब यहाँ पे स्मॉल सोलेनॉइड में से करंट पास हो रहा है इनर सोलेनॉइड में से, तो along the direction of axis मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। अब ध्यान रखिए, अब along the direction मतलब ये इसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से पास आउट हो गए, यहाँ से फिर से एंटर होगी, तो सिर्फ इतना ही स्मॉल एरिया क्रॉस सेक्शन ही आएगा, नॉट पूरे लार्ज सोलेनॉइड का एरिया क्रॉस सेक्शन। इसीलिए अब यहाँ पे सो मैग्नेटिक फ्लक्स linked with outer solenoid can be written as N2 phi2 equal to N2 as it is, and what is phi2? Phi2 is magnetic flux linked with each turn of outer solenoid, तो मैग्नेटिक फील्ड B1, लेकिन अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर या नीचे रहेगी नहीं, ये स्मॉलर सोलेनॉइड से पास होगी, इसीलिए क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉलर सोलेनॉइड का ही आएगा, N2 into B1 है। वैल्यू ऑफ N2 एज इट इज B1 इक्वल टू म्यू 0 N1 small n upon I1 into small a। What was small a? Area of cross section pi r1 square. So this can be written as mu 0 n1 n2 I1 into pi r1 square upon n is n2 phi। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ आउटर सोलेनॉइड। अब इसको डिवाइड कराइए बाय करंट पासिंग थ्रू इनर सोलेनॉइड, this n2 phi2 upon I1 equal to mu 0 n1 n2 pi r1 square upon n, and according to definition this is 2 upon 1,
This can be written as M21, mutual inductance of system of two coils or mutual inductance of second solenoid with respect to first solenoid, इक्वल टू, यही इक्वेशन रहेगा, लेकिन इसी इक्वेशन को नाउ आई मल्टीप्लाई बाय एल एंड डिवाइड बाय एल, तो ये कैपिटल N1 बाय एल क्या हो जाएगा, स्मॉल n1, कैपिटल N2 बाय स्मॉल n2 into pi r1 square as it is into L and it is M21. तो देख लीजिए वही इक्वेशन है. तो दिस इक्वेशन shows that M12 equal to M21, यानी कि आप इलेक्ट्रिक करंट लार्जर सोलेनोइड से पास करा के मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद स्मॉलर सोलेनोइड के साथ लिंक करा के म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करें, या तो फिर इलेक्ट्रिक करंट आप स्मॉलर सोलेनोइड से पास करा के मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद लार्जर सोलेनोइड के साथ लिंक करा के म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करें. तो दोनों केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस की आपकी सेम फॉर्मूला मिलेगी एंड इट इज म्यू जीरो n1 n2 pi r1 square into small l, and therefore this is given by common mutual inductance M is equal to mu zero n1 n2 pi r1 square into small l, and this is M12 equal to M21 is known as the reciprocity theorem. Okay.